Hello. Yes, sir. Actually, in last lecture we have starting discussion about the already learned that there are Sasneha, Tikshnoshna, Laghu, Visram, Saradrom. These are the properties of the Pitta dosh, by which the easy and proper digestion of the food particles and also along that assimilation and absorption of the contents takes place very easily. Due to that, whatever the Pitta dosh which is present in our body, where it is present and what is the main important functions of that, we should know that. And for that purpose, we are going to deal with the further points about the Pitta dosh. Actually, you know that Pitta dosh is mainly responsible for digestion, metabolism, and also like that whatever the these uh, properties are there, how it works in our body and at which location it works, that we should need to learn. That already we have seen the its properties, but also like that whatever the normal here you can see the functions of the Pitta dosh. These are the main functions of the Pitta dosh. But before knowing these main functions, we should know the main locations of the Pitta dosh. Here we can consider that te व्यापींना अपि रुन्ना अभ्यर अधो मध्यो ऊर्ध्व संश्रया. Means actually whatever the doshas are there, these doshas are present all over the body. Actually, with this consideration, Pitta dosh is also present all over the body. Also on that, it is present at the madhya part. Madhya in the sense, suppose we divided the our sharir into three parts. That adho, madhya, and urdhva. Adho means lower part where vata is present. Madhya means middle part where pitta is present, and urdhva means upper part where kapha is present. In that way, but also there is main locations are explained. Nabhir amashay means nabhi amashay. Swedo lasika rudiram rasaha. Swed lasika rudira. Rudir means rakta. Rasa means rasadhatu. Means lymph or plasma. Druka sparshanam cha pittasya nabhiratra vishesa. And also like that, these are the main locations of our pitta dosh, and that's why tridoshas are mostly we should consider one nyaya it is there. That is the vyapadeshes to bhyasa. Means it is present all over the body, not at a single site, but these are the main sites. But we should consider tridoshas are present all over the body. Among that also predominantly present at the madhya sharir, and among that also it is predominantly means mainly present at this site. ये श्लोका लिख के रखो. सर ज्वाइन कर.
ओवर। उधर एक न्याय का नाम लिखा है, देखो, व्यपदेशस्तु भूयसा, इधर दिख रहा है। न्याय का नाम लिखो, व्यपदेशस्तु भूयसा। As per this न्याय, as per this न्याय, Tridoshas are present at सर जॉईन करून घ्या ना, बाकीचे राहिले कोणतरी. Tridoshas are present at all over the body, all over the body. It moves and does its functions. It moves and does its functions throughout the body, throughout the body. So Pitta dosh also present all over the body. So Pitta dosh also present all over the body, but predominantly present at madhya sharira. Madhya sharira. In madhya sharira, pitta dosh mainly present at नाभि. नाभि बोले तो क्या? umbilical region. नाभि बोले तो umbilical region. आमाशय बोले तो स्टमक. आमाशय बोले तो स्टमक. स्वेद, स्वेट ग्लैंड्स, नहीं तो मतलब स्वेटिंग मैकेनिज्म जिधर से होता है, स्किन पोर्स और स्वेट ग्लैंड्स. लसिका मीन्स लिम्फ. लिम्फ और प्लाज्मा. रुधिर बोले तो रुधिर रक्त का पर्याय है, रक्त का सिनोनिम है, रक्त. रस बोले तो रस धातु, इसको प्लाज्मा बोल सकते हैं. द्रुक मीन्स दृष्टि मीन्स आईज, नेत्र, आईज. स्पर्शन बोले तो स्पर्शन इंद्रिय, स्किन. but predominantly moves around the umbilicus, नाभि. उसमें सबसे पहला अगर ऑर्गन हम देखें तो वो कौन सा है? नाभि बोले तो आपको पता है अम्बिलिकस का फीटल लाइफ में इंपॉर्टेंस ज्यादा है या लाइफ का मतलब हमारा डिलीवरी के बाद जो बर्थ होने के बाद का इंपॉर्टेंस ज्यादा है?
फीटल फीटल लाइफ में क्या करते हैं अम्बिलिकस? न्यूट्रिशन। हाँ, प्लेसेंटा के साथ कनेक्टेड रहता है और यही कनेक्शन से ही हमें फीटल लाइफ में फीटस को न्यूट्रिशन और वो सब मिलता है। और फीटल ब्लड सर्कुलेशन का मेन जो डेस्टिनेशन है उसमें अम्बिलिकस का इंपॉर्टेंस बहुत है। अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल वेन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए प्लासेंटा के साथ, जो मैटरनल प्लासेंटा के साथ मदर के प्लासेंटा के साथ कनेक्टेड रहता है। इसके लिए नाभि को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। और जो कुछ हमारे त्रिमर्म कंसिडर किया है, त्रिमर्म बोले तो, मर्म बोले तो वाइटल पार्ट्स और वाइटल ऑर्गन्स और वी कैन से वाइटल साइट्स, लोकेशंस हमारे बॉडी के। और उसका एक कंसिडरेशन है कि मारियंती इति मर्मानी, बोले तो कौन से भी मर्म के ऊपर अगर आपको ट्रॉमा हो गया तो उधर पर्सन की डेथ तक हो सकते, उसमें एक नाभि को कंसिडर किया है। तो वो जो नाभि है, नाभि बोले तो हमारा जो अम्बिलिकल कैविटी का रीजन, अम्बिलिकल रीजन, अम्बिलिकल रीजन के जो ऑर्गन्स अगर आप थोड़ा सा कीनली ऑब्जर्व किए तो उधर लीवर रहता है, स्प्लीन रहता है, उसके साथ स्टमक का थोड़ा पार्ट रहता है, इंटेस्टाइन का पार्ट रहता है। बोले तो ये सभी ऑर्गन्स कौन से सिस्टम के? डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स है। इसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, पित्त का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है डाइजेशन करना, और उसके लिए ही वो नाभि प्रदेश में क्या है, प्रिडोमिनेटली प्रेजेंट है। और इसके लिए ही हमें नाभि को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। इसके लिए आपको चिकित्सा करते वक्त, बोले तो ट्रीटमेंट करते वक्त भी नाभि को कंसिडर करना चाहिए। और पित्त को जो हम पित्त कम करने के लिए, पित्त को शोधन करने के लिए, एक्सेसिव पित्त हो गया तो उसको रिमूव करने के लिए पंचकर्म करते हैं। पंचकर्म में विरेचन, विरेचन बोले तो क्या करना, लूज मोशन होते हैं पेशेंट को और उससे पित्त दोष जो एक्सेसिव है उसको निकाला जाता है। वैसे थेरेपी करने के लिए भी नाभि को ही मेनली हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। इसके लिए फर्स्ट लिखो नाभि, आप खुद लिख सकते हैं, बोलना चाहिए मैंने। एक्सप्लेनेशन बोलना चाहिए अभी जो बोला मैंने वो, या फिर आप लिख सकते हैं। हेलो सर आप बताइए। हाँ ठीक है, लिखो नाभि मीन्स अम्बिलिकल रीजन। सर स्टूडेंट आहे तुम्ही. एवढा वेळ काय करतात ते? उसमें most of the digestive organs like stomach, duodenum, colon, liver are present at this region. So pitta present at this site. Works in these organs and does digestion of food. And it is considered as the main site for pitta dosh. Next है आमाशय, stomach. It is the main site of digestion.
here food material get digested by Jఠराग्नि under influence of पाचक पित्त. Under influence of पाचक पित्त. Under influence of पाचक पित्त. Next स्वेद. स्वेद बोले तो स्वेट glands. By the initiation of these activities, स्वेद प्रवृत्ति, स्वेद प्रवृत्ति controls on उष्ण गुण पित्त, regulates temperature of body, and heat mechanism. क्या क्या करता है? हीट मैकेनिज्म करता है. स्वेट ग्लैंड का प्रोडक्शन होने से, स्वेटिंग प्रोड्यूस होने से बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है. इसके लिए उष्ण गुण जो पित्त का जो बढ़ सकता है उसको कंट्रोल में लाया जाता है. कितना एक्टिव होना चाहिए उष्ण गुण, तो एक्टिविटी स्वेद क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है. देखो नाभि में क्या क्या इधर दिया है. जेजुनम है, इलियम का पार्ट है नाभि के यहाँ, ड्यूोडेनम है, लीवर के पार्ट्स उधर जाके ड्यूोडेनम के इसमें कनेक्टेड रहते हैं, स्टमक का पार्ट उधर कनेक्टेड रहता है. इसके लिए जो डाइजेशन है इसको ही हम नाभि के साइड को ही हम डाइजेशन का मेन साइड मान सकते हैं, और वही हमारे पित्त का मेन साइड इधर दिखाया देखो, नाभि प्रदेश. यहाँ आमाशय स्टमक का पार्ट है. स्टमक के रुगे और इसोफेगस से कनेक्टेड होने के बाद फंडस बॉडी और उधर से फूड पार्टिकल जो मिक्सिंग का प्रोसीजर रहता है, मिक्सिंग का प्रोसीजर इधर कंप्लीट होने के बाद मोस्ट कॉमनली वो आगे क्या किया जाता है, मतलब जो पित्त है, पाचक पित्त उसके ऊपर एक्ट करता है, आहार के ऊपर. जठराग्नि उधर एक्ट करता है. और हमें मॉडर्न के अनुसार देखें तो HCl रहता है. उसके साथ साथ गैस्ट्रिक जूसेस जो रहते हैं, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन है, वो सिक्रीशन इधर एक्ट करने के बाद उधर क्या होता है, मोस्टली चाइम फॉर्मेशन होता है. और चाइम बोले तो क्या है, एक सेमी सॉलिड कंटेंट है. वो सेमी सॉलिड कंटेंट आगे ड्यूोडेनम को क्या किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है. उसके बाद लसिका बोले तो लिम्फेटिक नेटवर्क बोले तो एक हम कंसीडर कर सकते हैं कि लिम्फ बोले तो क्या है कि ब्लड सप्लाई एक पर्टिकुलर सेल को कंप्लीट होने के बाद उधर से जो रिमेनेंट्स बचते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स रिमेनेंट्स उधर से कैच करके और कुछ वेस्ट मटेरियल उसको कैच करके उसको बाहर से जो कुछ नेक्स्ट एक्शन उसके ऊपर कंप्लीट किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं लिम्फ. इसके लिए पित्त दोष उधर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उधर क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस उधर मतलब कंप्लीट किए जा रहे हैं. और ट्रांसफॉर्मेशन होना पित्त के सिवा बोले तो कुकिंग किए बिना हम मतलब फूड तैयार नहीं होता, वैसे पित्त के सिवा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता. वैसे कुकिंग का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए इधर कौन चाहिए, पित्त दोष चाहिए. और वही पित्त दोष क्या करता है, जो उधर है रक्त है, जो रक्त से क्या करता है, उधर से कंटेंट मतलब क्या बोलते हैं हम, जो टिश्यू बाथ की प्रोसेसर है, टिश्यू बाथ के प्रोसेसर के बाद जो कंटेंट से उधर से ड्रेन करके उससे लिम्फ बनाया जाता है. तो आपको पता होगा एक मतलब आर्टेरियल एंड और वेनस एंड, उधर वेनस एंड में ब्लड जाने के बाद जो रिटर्न बैक फ्लो उधर बचता है सेलुलर लेवल पे, उधर वो क्या जाता है, लिम्फेटिक नेटवर्क में चला जाता है. लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ते वक्त हम डिटेल में वो पढ़ सकते हैं. उसके लिए तो आपको पता रहना चाहिए कि लसिका बोले तो क्या है, लिम्फ है. और वो लिम्फ क्या है, लिम्फ का मेन फंक्शन क्या है कि जो कुछ उधर जलीय अंश है, नहीं तो जो कुछ न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस है
और कुछ वेस्ट ऑल्सो है, वो सब क्या किया जाता है, ड्रेन किया जाता है। उसके लिए कौन हेल्प करता है, पित्त दोष हेल्प करता है। वो लिखो लसिका, पित्त दोष इज ऑल्सो प्रेजेंट एट lymphatic network including lymphatic capillaries, lymphatic vessels, duct and organs। मतलब कुछ बैक्टीरिया वायरसेस अगर ये लिम्फ के साथ मतलब लिम्फ के प्रोडक्शन के वक्त उसमें रहे तो जो हमारे लिम्फ नोड्स और लिम्फ ऑर्गन से उधर जाने के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको पता है बर्न करने जैसी प्रोसेस है, उसके लिए उष्ण गुण और तीक्ष्ण गुण पित्त का बहुत अच्छी तरह से हेल्प करते हैं। इसके लिए जो लिम्फ है उसमें पित्त प्रेजेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है रुधिर। रुधिर बोले तो रक्त। पित्त दोष इज आश्रयी एट रक्त धातु। पित्त दोष इज आश्रयी एट रक्त धातु। So pitta is present at blood vessels and circulatory system. नेक्स्ट है रस। रस बोले तो इसको हम आहार रस कंसिडर कर सकते हैं और रस धातु भी कंसिडर कर सकते हैं। आहार रस बोले तो जो कुछ हमारा स्टमक में डाइजेशन की प्री फेज होने के बाद जो कुछ फॉर्म होता है चाइम, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। सेमी सॉलिड जो पेस्ट लाइक फॉर्म में है चाइम, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं आहार रस। और वैसे ही रस धातु बोले तो ये आहार रस है, उससे फर्स्ट धातु जो फॉर्म होता है पहले जिधर न्यूट्रिशन जाता है वो है रस धातु। इसके लिए पित्त क्या करता है, मतलब जो रसाग्नि के रूप में काम करता है। रसाग्नि के रूप में बोले तो फर्स्ट जो कुछ आहार रस है उसको फर्स्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने में क्या करता है, सबसे पहले हेल्प करता है। बोले तो हमें पता है शुगर मतलब जो हम बोलते हैं कि ग्लूकोज तैयार होने के बाद जितना चाहिए उतना सेल यूटिलाइज करते हैं एटीपी के लिए। एक्सेसिव है वो लिवर और हमारे बॉडी टिश्यू के मतलब स्किन के अंडरनीथ स्टोर किया जाता है, और जितना बॉडी की एनर्जी के लिए चाहिए वो एनर्जी के लिए यूटिलाइज किया जाता है, और जो रिमेनिंग है वो ब्लड में रहता है। बोलो तो ये क्या है, ये मेंटेनेंस और मैकेनिज्म रखने के लिए क्या है, उधर भी अग्नि रहना इंपॉर्टेंट है। और अग्नि के कॉमनली 3 टाइप माने जाते हैं। एक रहता है धात्वाग्नि जो धातु के यहाँ काम करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। एक रहता है जठराग्नि जो जठर में बोले तो स्टमक में काम करता है। और एक रहता है पंचभूताग्नि, बोले तो ईच भूत के जो पंच महाभूत है हर एक का अग्नि है, और वो अग्नि उसके रिस्पेक्टिव जो कुछ फूड पार्टिकल्स हम लेते हैं उसके ऊपर वो क्या करता है, रिस्पेक्टिव अग्नि वर्क करता है। इसके लिए रस धातु। पित्त दोष इज ऑल्सो प्रेजेंट एट रस धातु which helps in transport of रस रक्त। रस रक्त क्या क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। रस रक्त बोले तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि जो प्लाज्मा और ब्लड सेल्स दोनों मिलके जो रस रक्त है, और ब्लड सेल्स बोले तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि रुधिर है, जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट है, हीमोग्लोबिन है, वो सब और प्लाज्मा तो सभी मिलके हम उसको क्या कंसिडर करते हैं, होल ब्लड। वो होल ब्लड का ट्रांसपोर्ट करने में क्या करता है, पित्त दोष हेल्प करता है। और आपको पता है जिधर ब्लड सप्लाई रहता है उधर वार्मनेस रहता है, कोल्डनेस रहता है, वार्म रहता है। वो वार्म रहना बोले तो क्या है, पित्त जो ट्रांसपोर्ट होता है ना रक्त धातु के साथ, वो ट्रांसपोर्टेशन ही उधर उष्ण गुण उसका मेंटेन करके उधर क्या करता है, वार्मनेस प्रोवाइड करता है। आयुर्वेद के अनुसार देखे तो इसके लिए उधर वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं ना, ह्यूमन बीइंग वार्म ब्लडेड है कि उधर जिधर ब्लड सप्लाई उधर वार्मनेस फील होता है। वो वार्मनेस फील होने का मेन कॉज क्या है, उसमें पित्त प्रेजेंट है रक्त में, उसका मेन ये है। नेक्स्ट है द्रुक। द्रुक बोले तो दृष्टि। पित्त दोष इज प्रेजेंट एट आईज। पित्त दोष इज प्रेजेंट एट आईज which is responsible for transformation of images, pictures, transformation of images, pictures। मतलब आपको पता होगा प्रिज्म जैसा है हमारे आईज का काम। उधर जो कुछ मतलब इमेज फॉर्म होते हैं, इमेज एक्चुअली अपोजिट फॉर्म होते हैं,
लेकिन ब्रेन को दिखते वक्त हमें वो मतलब एग्जैक्ट जो कलर में है और जो कुछ सुटेबल फॉर्म में दिखाई देते, वो दिखाई देने में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और ट्रांसफॉर्मेशन कौन करता है? पित्त दोष करता है। हमेशा याद रखने का, ट्रांसफॉर्मेशन बोले तो चेंज होना पित्त के सिवा पॉसिबल नहीं, बाइंड होना कफ के सिवा पॉसिबल नहीं, और मूवमेंट होना वात के सिवा पॉसिबल नहीं। हमेशा याद रखना, क्या भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है बॉडी में, पित्त उधर एनर्जी लगा रहा है, क्या भी बॉडी में मूव हो रहा है, वात उधर एनर्जी लगा रहा है, और क्या भी बॉडी में एक दूसरे के साथ बाइंड हो रहा है, कफ उधर एनर्जी लगा रहा है, वो याद रखने का। नेक्स्ट है स्पर्शन इंद्रिय। पित्त दोष इज ऑल्सो प्रेजेंट एट त्वचा, by which transportation of sparsha, touch takes place। और आपको पता है हम मेडिसिन किधर किधर से देते, कौन कौन से रूट से दे सकते हैं? रुधिर रक्त दिखा है, देखो लसिका बोले तो लिम्फ उधर दिखा है। हमारे बॉडी में अगर समझो एक पेशेंट है, पेशेंट को हम मेडिसिन देना चाहते हैं, तो मेडिसिन देने के रूट्स कौन कौन से हैं? एक हम इंजेक्शन दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर नहीं तो इंट्रावेनस। एक हम ओरली टैबलेट दे सकते हैं, लिक्विड दे सकते हैं, कुछ भी मेडिसिन दे सकते हैं। और एक रहता है हम क्या लगा सकते हैं, कुछ ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, कुछ पाउडर लगा सकते हैं, कुछ क्रीम लगा सकते हैं, कुछ बाकी टाइप का बोले तो एक मतलब ऐसा लेप लगा सकते हैं। बोले तो उधर जो कुछ जैसा हम ओरल तो क्या होता है, डाइजेस्ट होकर हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। इंट्रावेनस दिए डायरेक्ट उधर ब्लड में जाता है, इंट्रामस्कुलर दिए उधर से कैपिलरी से ब्लड में जाता है। देखिए ना, इधर जो कुछ हम स्किन के ऊपर लगाने के लिए क्रीम देते, वो क्रीम भी उधर एब्सॉर्ब हो जाता है। और एब्सॉर्ब बोले तो वो भी क्या है, एक टाइप का डाइजेशन है। उधर रहने वाला भ्रांजक पित्त रहता है, बोले तो जो भ्रांजन करता है, जो त्वचा में कलर देने का काम करता है। त्वचा में ऐसे कुछ मेडिसिन आप लगाए तो उसको एब्सॉर्ब करने का काम करता है। और आपको पता है आयुर्वेद में नहीं तो सभी ट्रीटमेंट प्रिंसिपल से उसमें लेप चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेपन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जो पंचकर्म में अभ्यंग करते हैं आप, तैल अभ्यंग आपने सुना होगा, जो दिवाली में किया जाता है। अभ्यंग बोले तो आप क्या करते हैं, उधर ऑयल रब करते हैं। और रब किया हुआ ऑयल वैसा ही रहता है क्या हमारे बॉडी पे 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए? नहीं, क्या होता है, वो एब्सॉर्ब हो जाता है। एब्सॉर्ब होता है बोले तो उधर क्या है, शोषण हो जाता है, एब्सॉर्प्शन हो जाता है। और एब्सॉर्प्शन होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पित्त दोष रिस्पॉन्सिबल है। कोई क्लिक उसमें ऐड करो, पित्त दोष ऑल्सो एब्सॉर्ब द ड्रग्स, absorb the drug which are applied at त्वचा, skin. For example, ointment, cream, powder and लेप। सभी प्रकार के लेप जो हम लगाते हैं वो सभी प्रकार के लेप उधर से क्या हो जाते हैं, एब्सॉर्ब हो जाते हैं, और इजीली एब्सॉर्ब हो जाते हैं। और इजीली होने के बाद मोस्ट कॉमनली हमें क्या है, मतलब इजीली मतलब जो ड्रग हमने दी है वो ड्रग हमारे बॉडी में इजीली हमारे मतलब जो डेस्टिनेशन है उधर तक क्या होता है, मोस्टली रीच होता है। और ये सब होने के लिए ही क्या रिस्पॉन्सिबल है, हमारा बॉडी का जो कुछ सरफेस एरियाज है, बोले तो स्किन का सरफेस एरिया, तो स्किन के सरफेस एरिया से मोस्टली क्या हो जाता है, वो एब्सॉर्ब हो जाता है। इसके लिए जो कुछ कंटेंट उधर है, समझो हमने स्किन के ऊपर एक लेप लगाया, वो लेप क्या हो जाता है, उधर वैसा ही नहीं रहता, वो ड्राई हो जाता है, एब्सॉर्ब हो जाता है। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पित्त दोष रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए हमने अगर पित्त दोष का जो कुछ डेस्टिनेशन देखे, उसमें सबसे पहला डेस्टिनेशन है नाभि आमाशय, बोले तो नाभि में प्रेजेंट है, आमाशय के यहाँ स्टमक में प्रेजेंट है, स्वेद बोले तो स्वेटिंग ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड सभी वो ऑल ओवर बॉडी में उधर प्रेजेंट है, लसिका, लसिका बोले तो लिम्फेटिक नेटवर्क में प्रेजेंट है, रुधिर रक्त में प्रेजेंट है, रस धातु बोले तो जो रस धातु बोले तो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में प्रेजेंट है, ब्लड का एक मेन लिक्विड कंटेंट है प्लाज्मा, उधर प्रेजेंट है। उसके साथ साथ दृक स्पर्शनम बोले तो वो दृष्टि में प्रेजेंट है, आईज में प्रेजेंट है, उसके साथ त्वचा में प्रेजेंट है। इसके लिए जो कुछ आप मतलब आईज से देखते हैं, इमेज जो कुछ फॉर्म हो जाता है, वो इमेज हम इजीली ट्रांसफॉर्म करके हमारे बॉडी में क्या हो सकता है, मतलब हमें इमेज जो प्रॉपरली फॉर्म होती है और हमें प्रॉपरली उसका इंफॉर्मेशन मिलता है। उधर आपको ने सुना होगा, उधर कोन्स रहते हैं, रॉड्स एंड कोन्स रहते हैं। वो रॉड्स क्या करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट विजन देते हैं,
कोन्स जो है कोन्स कलर विजन देते हैं। बोले तो अभी आपने कौन सा कलर का ड्रेस पहना है, रेड कलर का है, व्हाइट कलर का है, पिंक कलर का है, ब्लू कलर का है, वो कलर आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे आईज बहुत अच्छी तरह से हेल्प करते हैं। उसमें जो हमारा पित्त है बोले तो उसमें आलोचक पित्त बोलते हैं। आलोचक पित्त क्या है हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। इसके साथ साथ हमें उसके फंक्शन देखना है और उसके टाइप्स देखना है। उसके 5 टाइप्स रहते हैं। कौन से टाइप्स बोलो, 5 टाइप्स कौन से हैं? भ्राजक, रंजक, आलोचक। हाँ ठीक है, आलोचक पित्त है, भ्रांजक पित्त है, पाचक पित्त है, रंजक पित्त है और पाचक, हाँ साधक। पाचक, रंजक, साधक, भ्रांजक एंड आलोचक, ऐसे टोटल 5 टाइप्स कॉमनली इसके कंसिडर किए जाते हैं। और ये 5 टाइप्स के ऊपर ही हमारा जो कुछ दोष विशेषण, कैसे दोष विशेष हो जाते हैं, कैसे मतलब इधर ये लोकेशन में कैसे वो विशेष हो जाता है। स्किन डिसीज हुआ तो भ्रांजक पित्त का क्या रोल है, कुछ हृदय का डिसीज हुआ तो साधक पित्त का क्या रोल है, आइज का डिसीज हुआ तो आलोचक पित्त का क्या रोल है, आलोचक पित्त उधर कैसे दुष्ट हो सकता है, कैसे वो दूषित हो सकता है, कैसे विशेष हो सकता है, उसका ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, इसके अनुसार हमें एक एक करते कंसिडर करते जाना चाहिए। सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। अभी हम पित्त कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कफ कंप्लीट करेंगे। त्रिदोष कंप्लीट होने के बाद इसके ऊपर एक टेस्ट ले लेंगे हम, त्रिदोष के ऊपर एक टेस्ट। मतलब आप प्रिपेयर करते जाओ, अभी जो कुछ चल रहा है। श्लोका सभी बाइट होने चाहिए सभी के, वात के, पित्त के, कफ के। बोले तो स्थान, गुण, कर्म, निरुक्ति, टाइप्स और वृद्धि क्षय। बोले तो इसके सभी को फंक्शंस और वो सब आपका याद रहना चाहिए। इसमें कुछ क्वेरी है? हेलो हेलो, ठीक है, ओके, थैंक यू।